Honorable Principal Ma'am, Ms. Sushma Punia, the navigator of flagship of knowledge, to address the gathering. Ma'am, please. Very good morning all. How are you all? Fine with this heat. You know, the summers are really on peak, and I hope you all are safe at your homes as we are making kids comfortable in the school. I have called you here with the reason that we are about to close the schools before the summer vacation, and there are many things that needs to be conveyed to our parents. I am very much happy with your cooperation, the way you have been cooperating all these days, and I feel so glad to share you that the kids have settled down very fast in the school after a period of 2 years lockdown. There are few activities which we have paid activities, and you know it depends on the interest of the children which activity they would participate in. You know, every child is born different, every child is unique, so we have to address their uniqueness, we have to address their interest and skills what they are born with. So if we provide them the opportunity to be part of those hobby activities which are paid. Why we have it paid activities? Because we have the resources coming from outside, we have the team coming from outside, we have people who are going to train these kids coming from outside, and they need to be paid about their traveling expenses and their resources that they use, and of course the knowledge that they're going to impart to these children. So these are the paid activities with nominal charges that they are going to they have these activities. So one of the team is here, team 360 is here with us. They are coming all the way from Rajasthan, Jaipur, and they have their this program for the kids of right from 3 years of age till they are in the schools, and they work on the pan India this thing, and they have their various branches in every corner of India. Whether you heard it or not, I don't know. Mid brain activation. You know that human brain is so much complicated part of our body that we have yet to understand its functioning fully. And I don't know, it's just around 10 to 14% that has been utilized effectively so far. The rest of the portion of the brain is yet to be utilized. And people like us who are very busy in our core work with our going for our jobs and maintaining our family life and taking care of our kids, we don't just bother how to make effective use of our brain. So, and of course it's too late also. It's too late because we have so many occupancies in our life. We have to take care, we have so many responsibilities. But the kids who are coming to school, they are actually not having that much of responsibilities. They are being taken care of by others, but their brain is developing stage. They are in a developing form, their body is developing, their brain is developing. So we have to utilize this moment of their development so that it can be efficiently used and efficiently made to function for their life, so that they become successful in their life. Of course, everybody will be successful, but how much success they are going to be, how much effectively they are going to use their brain, how often they can use this for their memory, because आजकल सारी memory based चलता है. आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो लो, आपके जो भी आपके बाहर जाके बच्चों को कंपटीशन फेस करना पड़ता है ऑल इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, दे हैव टू फेस लॉट मेनी कॉम्पिटिशन्स एंड देयर कम्स द मेमोरी. सो हाउ टू शार्पन देयर मेमोरी स्किल्स, हाउ टू यूटिलाइज इट इन ईजी मैनर. बिकॉज हम लोग जब बच्चे से बोलते बेटा ये याद करो, एक पेज आपको ये याद करना, कल इसका टेस्ट होगा, तो बच्चे को बहुत मुश्किल होता है उसको याद करना, और फिर हम उसको बोलते हैं ये रट्टा लगा लो तुम, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. We cannot force the child to go for a ratification. Rote method learning is backdated, and that should be discouraged because it creates disinterest in the child to learn. बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है जब हम बोलते हैं इसको याद करो. याद क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि कल इसका टेस्ट है, कल तुम्हें टेस्ट में लिखना है. वो याद करने का कोई फायदा नहीं है. उसने याद तो वो कर लेगा और टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी ले आएगा, बट अल्टीमेटली इट विल बी फॉरगॉटन.
So how to develop the memory, how to sharpen the skills, memory skills, so that it can retain throughout their life and use it for their future. This is what we are catering for the kids of yours. Let us see how well the team is able to satisfy your needs, satisfy your queries, so that you can enroll your children for this activity. We have still 3 days in hand with us, and this is a 10 days program where 1 hour duration or maybe 1.5 hour duration will be taken, and your kids will be there, and it will be trained and groomed in a manner that you will be surprised. You will be surprised. And let me tell you, ब्रेन के हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कौन सा हिस्सा हमारे क्या काम करता है, ये भी हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि हमने इसके ऊपर स्टडी नहीं करी हुई है. बट देयर आर एक्सपर्ट्स हु हैव डन लॉट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च ऑन दिस. There are a lot of people. There's a team behind who's working on this. How to increase the efficiency of human brain. How to increase and how to make it more efficient. This is the need of an hour. And this project has been appreciated by the government of India also. To your surprise, to our surprise, they have initiated and promoted this program on pan-India level, and in fact the children are in abroad also, they are doing extremely well in this regard. So मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी इसके बारे में, मैंने बहुत short में कहा है. Our team is here to help you out in this. So first of all, I am very much grateful for school management because they have invited us to speak. Thank you. Close this, just be close this. So we are very grateful for school management because they have given us chance to speak in front of you, and we are very grateful for you people because you all are sitting here. अगर आप ही नहीं होते तो हम बात कैसे करते हैं? So we are very grateful, and even it's been almost 11 years, 11 साल हो गए हम लोगों को. But first time I am telling you, मैम ने जिस तरह से प्रिसाइज इतना 10 मिनट में बताया है, I was expecting कि यार मुझे 45 मिनट लगते हैं उसको 10 मिनट में कवर कैसे किया. So it was unexpected for me, and see, let me introduce first, as ma'am was saying, midbrain activation. Have you gone through that word midbrain activation? Is there anyone sitting here? Just raise your hand, so that would be easy to. The parents are sitting here. I think अगर किसी को थोड़ा बहुत भी जानकारी है midbrain के लिए तो सिर्फ हाथ खड़ा कर दीजिए. Alright, so we'll cover all those stuff. Nobody is here. Okay. Let me introduce first. I am Vipul Sharma. Basically, I'm a corporate trainer of new mindset from New Learning Organization Golden Inspiration. Apart from this, I'm a nutritionist, and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA. I deliver a lecture on that particular subject, especially for those people who are selected in civil services. But gradually I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something and introduced few products like MIT pineal gland activation, जिसको अभी हम लोग midbrain activation कह रहे हैं layman language में. So it all started in 2012 when we were invited to deliver lecture on DD National. दूरदर्शन का आपने नाम सुना होगा, 2012 में हम लोगों को बुलाया गया था. And तभी ये चीज शुरू हुई, and subject was very simple to motivate those who were preparing for competitive exam. But the challenge was उनको motivate करना था जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं competitive exam की तैयारी तो कर रहे हैं but somehow कहीं selection नहीं हो पाया. So they said कि विपुल जी, मिनी जी, आप लोग इस तरह से कुछ करें कि demotivate नहीं हो, depress नहीं हो. और we were not that much convinced because उससे पहले बच्चों से कभी मुखातिब नहीं हुए थे. And वहीं से सारी चीज हुई शुरू. एंड आप लोगों ने नाम सुना होगा कोटा का. सुना है कोटा? कोटा बड़ा फेमस है एजुकेशन के नाम पे. एक राउंड तो वहाँ लगवा देते हैं, इंजीनियरिंग में हो चाहे नहीं हो वहाँ से एक राउंड निकल जाता है, मेडिकल में हो नहीं हो एक बार तो वहाँ से निकाल देते हैं. एंड 2012 में जब दूरदर्शन पे लेक्चर के लिए बुलाए गए, वहीं से सारी चीज शुरू हुई क्योंकि दे गेव मी लाइक वी वर डिलीवरिंग लेक्चर एंड दे गेव मी अ पेज लाइक रिसर्च वर्क दिया. वहीं से सारी चीज शुरू हुई. 2012 का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, 16,000 बच्चों ने सुसाइड किया और डिप्रेशन के शिकार में जस्ट बिकॉज IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ. अरे इतनी क्या कहता है, मतलब एक एग्जाम में पास नहीं हो तो आप फंदे पे चूल जाओ. सो इट वाज अनएक्सपेक्टेड, इवन आई ओपनिंग फॉर अस कि कुछ ऐसा लेके आए सो दैट चीजें बदल सके, एंड वी डिड दैट. और अभी तो 11 साल हो गए हम इसको पूरे को कवर करेंगे. और आज अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इट वुड बी आई ओपनिंग फॉर यू बिकॉज हम लोगों को बहुत टाइम पे इसको अभी नासा में भी रिकॉग्नाइज किया हम लोगों को इसी चीज के लिए जो हम लोग लेके आए. देवर लाइक अरे क्या कर कैसे लिया. सो अभी हम आपके साथ में शेयर करेंगे. लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है. चेंज क्यों है मैं बताऊं आपको.
अभी थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्यों है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा रीजन बता दूं। 2012 या 13 जो हम बता रहे हैं हम वी आर इन दिस इंडस्ट्री और फलाना फलाना, ये सब ठीक है, बट देखने का नजरिया बदल गया। बता देता हूँ मैं आपको क्यों। क्योंकि 2017 में मेरी शादी हुई और अभी 1 साल हुआ, अभी बच्चे का हमने एडमिशन कराया स्कूल में। उससे पहले भी हम सेमिनार करते थे, उससे पहले भी मैं लोगों से मुखातिब होता था, उससे पहले भी बहुत लोगों से वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने बात की है। बट द वे वी थिंक, हम जो सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका एक लाइक हस्बैंड वाइफ है, सोचने का तरीका बहुत अलग होता है और एक पेरेंट के सोचने का तरीके में रात दिन का अंतर होता है। ये मुझे अभी पता चला है 2 महीने पहले, उससे पहले नहीं पता था मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, 4 साल के बच्चे, पहले तो कोविड का आशीर्वाद था हमारे पे, तो एडमिशन करा ही नहीं पाए, ठीक है। 3-3.5 साल की उम्र में अभी हम लोगों ने एडमिशन कराया, तो वी वर इन दैट जोन कि किस में कराएं यार, किस स्कूल में एडमिशन कराएं। पहले तो यही इशू हो गया हमारे लिए। अच्छा इस स्कूल में कराएं, 100% मार्क्स आने चाहिए, नहीं, बेस्ट तो स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए। मतलब हम लोगों के लिए अपने आप में ये चैलेंज हो गया। और उसके बाद हमें जो आप लोग बैठे हैं, आप लोग मेरे लिए ज्यादा सीनियर है, मतलब मुझे लगता है मेरे से ज्यादा सीनियर है, 11 साल सीनियर है। क्यों? क्योंकि इतना इस पॉइंट से कभी सोचा ही नहीं था। तो अब हमारे लिए डबल जिम्मेदारी है कि भाई मेरे को उस पॉइंट से भी बात करना है, केवल स्पोर्ट्स नहीं है, केवल पढ़ाई नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हमें देखनी होती है। अभी 2 महीने में पहली बार तो मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में गया हूं, तो अभी आप लोगों को देख के मुझे फील आ रहा है कि आप क्या क्या सोचते होगे या क्या करते होगे। सो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन अब ज्यादा है, क्योंकि अब जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है, क्योंकि उसको पर्सनली फील भी किया है। 11 साल में ये फर्स्ट टाइम है, तो दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस है जो आपके लिए बहुत यूनिक होने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन आई वुड शेयर समथिंग वेरी यूनिक रिगार्डिंग स्टडीज एंड ऑल। मैं अभी विनीत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम करने वाले और बहुत यूनिक होने वाला, और 20 मिनट के अंदर सारी चीज हम कवर कर लेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ, प्लीज विनीत सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। थोड़ा आवाज नहीं आ रही है, जोश, क्योंकि जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप में अपने आप ही गोज विदाउट सेइंग कि आपके अंदर अपने आप जोश भर देगा। तो थोड़ा जोश के साथ बोलेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग यहाँ सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो चीज आपको विपुल सर बताने वाले हैं, उससे पहले मैं आपके साथ में कुछ छोटा सा एक्टिविटी करना चाहूंगा। मैं आपसे 1 से लगा के 100 तक, 1 to 100 के बीच में 2 डिजिट का नंबर पूछूंगा। आप लोग बता सकते हैं? जैसे 64, 93, 84, 39, 78 डिजिट बोल सकते हैं ना? आप जो बोलेंगे वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। इतना कर सकते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। आप सारे एक साथ बताएंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा। मैं 1 by 1 पूछता जाता हूँ, आप लोग बताते जाइए, सबको यहाँ पे दिखेगा। तो आपसे प्रिंसिपल मैडम से स्टार्ट करते हैं। आप बताइए, कोई भी डिजिट बताइए। 67। जैसे इन्होंने बोला 67, पहले मैं लिख के दिखा दूं आपको। लास्ट तक दिखाई दे रहा है ना 67? या और बड़ा लिखने की जरूरत है? दिख रहा है लास्ट तक? थैंक यू। चलिए आप बताइए मैडम। 48। लास्ट से कोई भी बताइएगा, आप बताइए मैडम। 99। 22। नेक्स्ट 25। नेक्स्ट 84। 84। 12। 60। 1। कोई भी 2 डिजिट, इसलिए मैंने 0 लिख दिया आगे। 13। 44। 77। 96। 52। 38। बोलते जाइए अब तो आगे। 10। कोई भी और डिजिट। 14। 19। 57। 70। 17। 11। चलो और बोल दीजिए, 1-2 डिजिट और। 16। चलो एक और मैडम का 79, ये ले लें। अभी बोर्ड इतना ही परमिट करता है। आपको लास्ट तक दिखाई दे रहा है जो लिखा हुआ है नीचे? मेरे हिसाब से सारा दिख रहा होगा। दिख रहा है? अभी हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है, तो ज्यादा टाइम ना लगे इसके लिए हमारे सामने कोई डिजिट लिखी हुई है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये मैं क्यों लिखी है इसके बारे में भी बताऊं। उससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जितने लोगों ने अभी तक यहाँ पे प्रोग्राम देखा है, जो भी बच्चों ने करके दिखाया, विपुल सर ने बताया, ये कितने लोगों को कैसा लगा? फिर तो यार बताइए आप, तभी आगे बढ़े।
शानदार, अमेजिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। देखिए हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, इससे भी अमेजिंग एक चीज मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। आपके सामने एक कुछ डिजिट लिखी हुई है, कहाँ से 67 से 79 तक। ये डिजिट अगर आपको सीक्वेंस में याद करने के लिए कही जाए तो आपको कितना टाइम लगेगा सीक्वेंस में 67 से 79 तक याद करना है? एक के बाद एक आप कंटिन्यू जैसा लिखा गया वैसा सुना दें, कितना टाइम लगेगा आपको सुनाने में या इसको याद करने में? कोई भी एक आध बताना चाहेगा? जैसे इन्होंने बताया आधा घंटा, कोई बोलेगा 1 घंटा। जनरली हम स्कूल में पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं 2 दिन लगेगा, आधा घंटा लगेगा। आप में से यहाँ कोई ऐसा शख्स बैठा है जो 1 मिनट में याद कर दे इसको? ओनली 1 मिनट मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट में तो सिर्फ रीडिंग करेंगे, अपन पढ़ेंगे कैसे, इसको याद कैसे कर लेंगे? तो मैं आप लोगों को करके दिखाऊं? तो आप लोगों का मुझे एक सपोर्ट चाहिएगा कि ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ देख रहा हूँ आपको, आप बस मेरे को डिजिट एक बार बोल के सुना दीजिए। मैं सिर्फ सुनूंगा 1 मिनट के लिए, उसके बाद मैं वापस से रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। शायद ही कोई डिजिट गलत होगी, तो या तो आप में से कोई भी एक पर्सन आके यहाँ पर मुझे सुना दीजिए, या साथ में मेरे साथ में जो मैडम आई है ये बोल के बता देंगे। आप में से कोई भी एक पर्सन आना चाहे तो आ सकते हैं, नहीं तो ये बोल के बता देंगे। आपकी जैसी चॉइस, आप बताइए। आप में से कोई आ रहे हैं या मैं इन्हीं को कहूँ? यही करेंगे, ठीक है। आप इस तरह से बोलिएगा, जैसे आप बोलेंगे 67, तो जब मैं आपको बोलूँ नेक्स्ट डिजिट तब आप बोलिएगा 48, ठीक है। मैं याद करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताइए मैडम फर्स्ट डिजिट। चलो ठीक है, कोई नहीं, बोलिए 67, ठीक है। नेक्स्ट 48, ठीक है। 99, ठीक है। 22, ओके। 25, ओके। 84, ओके। 1 2 12, ठीक है जी। 60, ठीक है। 01, ओके। 13, ओके। 44, ओके। 77, 96, 52, 38, 10, 14, 19, 57, 70, 17, 11, 1679, ठीक है जी। मिस्टर आप देखिएगा, ये ट्राई मैं सुनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, या आप लोग आप ट्राई टिक लगाइएगा। कोई भी गलत होता है तो देख लीजिएगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब मैं बोलना सुनाऊं तो, क्योंकि मैंने भी आप ही की तरह एक बार में सुना है, तो एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। एक भी गलत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई गलत रह जाए तो आप बीच में मत टोकिएगा कि ये गलत है, ऐसा गलत है। लास्ट में देख लेंगे अपन कोई गलत है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप टिक लगाइएगा मैडम। 6 7 4 8 9 9 2 2 2 5 8 4 1 2 6 0 0 1 1 3 4 4 7 7 9 6 5 2 3 8 1 0 1 4 1 9 5 7 7 0 1 7 1 1 1 6 7 9। Is it okay? Thank you very much. Thank you for your appreciation. ये डिजिट याद करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मैंने याद करा, लेकिन आपको ये चीज दिखाने के लिए कि इस कदर आपके स्टूडेंट की, आपके बच्चे की भी मेमोरी इतनी फास्ट हो सकती है कि एक बार देखते ही चीज हमारे को याद हो जाए। ऐसी टेक्निक हमारे टाइम में नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने अब ऐसी टेक्निक बना ली है, जिस टेक्निक से आप कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल विद पेज नंबर पूरी बुक 10 डेज में याद कर सकते हो, जैसा कि अभी विपुल सर ने बताया। लेकिन क्या क्या याद किया जा सकता है? पहले तो इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप जितने शख्स बैठे हैं वो भी कर सकते हैं, और बच्चा भी कर सकता है, कोई भी। तो फर्स्ट क्लास से लगा के कोई भी एज का पर्सन इसको सीख सकता है। लेकिन सीख क्या सकता है? सीख ये सकता है कि इस टेक्निक में आपको 8-9 तरह की ऐसी टेक्निक सिखाई जाएगी वर्कशॉप में, जिस टेक्निक्स में आप कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल याद कर सकते हैं। कौन सा? जैसे डिक्शनरी याद करना हो, पीरियोडिक टेबल है, साइंस इन्फॉर्मेशन है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री की इक्वेशन है, लॉन्ग पैराग्राफ है, बड़े आंसर है, ज्योग्राफी का मैप है, या हिस्ट्री की डेट है, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, कहाँ लोकसभा विधानसभा की सीटें कहाँ की थी, बहुत सारी चीजें। इवन आपके स्टूडेंट का और स्कूल के स्टूडेंट, आपके किड का स्कूल का स्टडी मटेरियल, जो भी बुक वो लर्न करना चाहते हैं और जो उनसे हो नहीं है, सिर्फ मैथ्स की बुक छोड़ के कोई भी बुक वो लर्न करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 10 डेज के अंदर सिखाते हैं। न केवल सिखाते हैं बल्कि 10 डेज के अंदर शुरू के 1-2 क्लास तो हम लोग कराएंगे, 3rd डे से आप उसे वो बुक साथ में भेजो जो उसे याद करनी है।
11वें दिन आपसे मुलाकात करेंगे। आप पेज नंबर बोलोगे 93 पे क्या है, स्टूडेंट यहीं खड़ा होकर बोलेगा 93 पर ये कंटेंट दे रखा है, ये चैप्टर 90 से चालू हुआ था, 95 पे जाके खत्म हो रहा है, आपने 93 पे पूछा है, मैं बता देता हूँ। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। 11th डे शुरू 10 डेज आप हमारे को दीजिए, 11वें दिन आपको बच्चे यहीं पे करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम के अंदर और इससे ज्यादा एक अमेजिंग चीज दिखाने वाले हम लोग, तो स्टार्ट किया जाए। तो मैं विपुल सर को इनवाइट करूंगा, क्योंकि हमारे साथ में मुंबई से एक स्टूडेंट भी साथ में आए हैं, जो एक कुछ ऐसा टैलेंट आपके साथ में शेयर करने वाले हैं जिसे देख के आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे और लाइफ में पहली बार ही आप लोग ऐसा देखेंगे। ऐसी श्योरिटी मैं आप लोगों को दे सकता हूं। तो मैं विपुल सर को इन्वाइट करूंगा ताकि आगे का जो है कोऑर्डिनेट करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा हम बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे इंडिया में लेकर आए और करीब 11 साल हो गए, हमने बहुत जगहों पे प्रोग्राम किए हैं। जो पहला प्रोजेक्ट है उसका नाम है DMIT, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है, सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है, जिसमें हम बच्चों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं। वो फिंगरप्रिंट यहाँ से सिंगापुर जाते हैं, वहाँ साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे 30 पेज की रिपोर्ट बन के आती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका इंटरनल ब्रेन किस चीज़ के लिए बना है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, डॉक्टर, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए भी बना है वो रिपोर्ट में निकल के आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने का घबराहट तो नहीं होती है, या लैंग्वेज को लेके कोई चैलेंज तो नहीं है। किसी को इंग्लिश का है, किसी को हिंदी का, प्रोबेबली जिसका जो भी है वो, अगर इस तरह का कोई चैलेंज है, डेफिनेटली दिस रिपोर्ट विल टेल यू, नॉट ओनली दिस थिंग, बट दिस रिपोर्ट विल टेल यू द डोमिनेंस ऑफ योर ब्रेन। एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न, वी आर हैविंग टू ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर आपका लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है, पीपल दोज आर सिटिंग हियर, इवन बड़े छोटे कोई भी जिनका भी लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है, वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, चार्टेड अकाउंटेंट, वकालत या लॉजिकली पढ़ाई से रिलेटेड करियर बहुत अच्छे से बनाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, स्टडीज कहती है। ऑलरेडी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने इस पे 1 घंटे का भाषण दिया है कि यह टेस्ट हर बच्चे का 5th स्टैंडर्ड में हो जाना चाहिए। काहे को 10th स्टैंडर्ड तक वेट करना और फिर डिसाइड करना, वो भी मार्क्स एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे हो तो ज्यादा बेटर है। अगर आपका राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है तो आप म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइंस के लिए अच्छे होते हैं। यही प्रॉब्लम है कि इसके बाद में 10th में जब सब्जेक्ट लेते हैं तो सब्जेक्ट लिया जाता है या तो मार्क्स के बेसिस पे, जब से 3 इडियट मूवी आई है, तो उसके बाद में इंटरेस्ट के बेसिस पे, और दोनों ही चैलेंज है। क्यों? क्योंकि दोनों में स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता, और जब तक आपको स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता तो मार्क्स तो आजकल बच्चों के बहुत आते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ है कि नहीं है ये रिकॉग्नाइज कर नहीं पाते। इसलिए फिर इंजीनियरिंग के बाद लोग यूजुअली MBA करते हैं। अदरवाइज इंजीनियरिंग में आप BE कर रहे हो, अब तो BTech हो गया तो MTech करना चाहिए, लेकिन वो सब BTech के बाद बढ़िया कॉम्बिनेशन के चक्कर में MTech करते हैं। MBBS के बाद में MBA करते हैं, समझ नहीं आता क्यों। गवर्नमेंट जॉब में है, छोड़ के प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में छोड़ के बिजनेस में जाएंगे। जनरली ओनली वन रीजन कि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे। वो जस्ट ओनली वन रीजन कि ये इस तरह का टेस्ट होना चाहिए। ऑलरेडी ओलंपिक के अंदर ये चीज होती रही है। 70 से रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड यूजिंग दिस कांसेप्ट। उन्होंने पहले से 1970 में शुरू कर दिया था। हम लोग बहुत पीछे हैं, 50 साल पीछे हैं, क्योंकि बाहर के देश है जैसे ताइवान है, जापान है, इंडोनेशिया, कोरिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, ये लोग बगैर इस टेस्ट के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं लेते। इतना यूनिक है, इतना गजब का टेस्ट है। इंडिया में आते आते हमें 2012 में पता चला है, आपको ओवर रेट पता चला है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के बारे में जानकारी लेना। न केवल ये, बल्कि इस टेस्ट से ये भी पता चलता है कि आपका IQ कितना है। IQ के अलावा आपका इमोशनल क्वेश्चन कितना है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को पकड़ के तो नहीं बैठ जाते हैं, कई बच्चों के साथ इशू होता है। इसीलिए अब जैसे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे या कहीं बाहर पढ़ने जाएंगे, किसी ने कुछ कह दिया और बात पकड़ के बैठ गए, इवन घर वाले ही कहते हैं अब तक लेके ही बैठा है क्या उस बात को। तो वो जो लेके ही बैठा है ना, वो छोटी छोटी बातें चल रही है, इसका मतलब ये कि इमोशनल ग्राउंड पे कहीं ना कहीं वीक है। इवन इमोशनल ग्राउंड पे स्ट्रॉन्ग है, IQ बहुत अच्छा है, तो एडवर्सिटी क्वेश्चन का इशू आ जाएगा। इन द सेंस जैसे पेपर देने गए, 10 क्वेश्चन है, अभी आउट ऑफ 10 व्हाट वुड हैपन, कई बच्चों को 4 क्वेश्चन आते हैं और घबराने की जगह अरे 4 तो करेंगे, 2-3 में और हाथ पैर मार लेंगे तो 60-70 स्कोर कर लेंगे। कईयों को 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेरे को तो सिर्फ 6 ही आते हैं, या घबराहट में पहला आंसर गलत हो गया, उसको काट देंगे, उसको वापस रब करेंगे और उसमें वो सारा बिगड़ जाएगा। और जहां 6-7 क्वेश्चन आने चाहिए थे वहां पे वो 4 ही क्वेश्चन करके आएंगे। दैट इज कॉल्ड एडवर्सरी क्वेश्चन। विपरीत परिस्थिति को हैंडल करने का स्टफ है कि नहीं, ये सब इसमें निकल कर आता है। आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो ये भी पता चलता है। न केवल ये, आप में लीडरशिप स्किल्स कितनी है, आपका ऑब्जर्वेशन लेवल कैसा है, ये सारी की सारी चीज आपको पहले दिन से पता चलती है इस टेस्ट के थ्रू। मजेदार बात यह है कि दोनों तरह की पर्सनालिटीज का पता चलता है। दुनिया से बच्चा किस तरह से सीखता है वो भी इस टेस्ट से पता चलता है।
और दुनिया को किस तरह से चीजें देता है, सिखाता है, वो भी स्ट्रेस से पता चलता है। इतना यूनिक है ये सारी चीज निकलने के बाद। अब इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आती है। इवन ये तक एज फार एज आवर ब्रेन इज कंसर्न, जैसा मैम ने बताया 86 बिलियन न्यूरॉन्स वी ऑल हैव, हम सबके पास 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स, 86 बिलियन न्यूरॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लेमन लैंग्वेज में क्या होता है, अगर बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा या किसी चीज के अंदर वीक है तो हम लोगों का जवाब आता है पढ़ता नहीं है। या डांस भी कर रहे होते हैं ना, तो कईयों को बारात में भी डांस में ना उसको धक्के देना पड़ता है, जाओ जाओ डांस करो, वो मैं नहीं जाऊंगा। चार लोगों के आगे पेरेंट्स खड़ा कर देते हैं, वो कविता सुनाओ, वो पोएम सुनाओ, बच्चे उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबली अरे हमारा तो ये करता ही नहीं है। अरे करता क्या नहीं है, वो उस हिस्से में उसके न्यूरॉन्स कम हैं। जिन हिस्सों में न्यूरॉन्स ज्यादा हैं वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और जिन हिस्सों में न्यूरॉन्स कम है वहां वो परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन ये चीज हमारी जानकारी में नहीं होती है, तो थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। हम कहते हैं उसमें कमजोर है, कमजोर जैसी चीज ब्रेन में होती ही नहीं है। ये कमजोरी कुछ नहीं होती है। जिन हिस्सों में आपके न्यूरॉन्स ज्यादा है वहां आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जिन हिस्सों में न्यूरॉन्स कम है वहां कम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे, हम सिर्फ इतना करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन माँ के पेट से बच्चा लेके आया है, बाई बर्थ जो लेके आया है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जहां पे न्यूरॉन्स कम है हम उनको शाइन कर देते हैं ताकि वो वहां पे भी बेस्ट परफॉर्म करे, और उसका लाइव एग्जांपल अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अब इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों निकल कर आती है। तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट कर देते हैं, व्हेन इट कम्स टू वीकनेस वी आर हैविंग वन मोर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, जैसे यहाँ लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। बच्चे चूंकि बहुत बच्चे भी बैठे हुए, अदरवाइज में जो बड़े बच्चे होते हैं तो उनके साथ में हम शेयर भी करते हैं। कई तरह के इनके पढ़ाई के चैलेंजेस आते हैं, वो भी हम शेयर करते हैं। जैसे याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं होता, याद कर लिया तो वो एग्जाम के पहले भूल जाते हैं, एग्जाम के पहले पेट दर्द होना, तबियत खराब होना शुरू हो जाता है, एग्जाम में आंसर लिख लिया, आधा लिख के आया, आधा छोड़ आए, या फिर पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथे पे गाड़ी अटकी, याद ही नहीं आता, यार इसका क्या आंसर है, वो क्वेश्चन ही याद नहीं आता है, बाहर जाके आंसर क्लिक से अरे यार मैंने तो वो लिख दिया। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस बच्चों के साथ आते हैं, जो बच्चे शायद पेरेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं या आपस में तो शेयर करते हैं। ये सारी चीजें स्ट्रेस से हमारे को पता चलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसमें स्ट्रेंथ भी आएगी और वीकनेस भी आएगी। तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट करते हैं, व्हेन इट कम्स टू वीकनेस एज आई सेड हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है फॉर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जिसमें हम 10 डेज का वर्कशॉप स्कूल्स में करते हैं। जैसा अभी बताया आपको, समर वेकेशन है, हम वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम इन समर। इस वेकेशन के हम लोग शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम ये वर्कशॉप कराएंगे 4 आवर्स अ डे, एक 4 घंटे का होता है, जिसमें हम आपको वो सारी चीज सिखाएंगे जिससे बच्चों के अंदर कुछ यूनिक टैलेंट आते हैं, जो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। बाइनरल बीट 44 हर्ट्ज का म्यूजिक होता है, वो सुनाते हैं, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज और डांस। उसका रिजल्ट है कि 10 क्लास के बाद बच्चा इस लेवल पे आता है कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, 1 घंटे की चीज 15 मिनट में याद होने लगती है, लंबे समय तक याद रहता है, अपनी एज से 3 साल मैच्योर हो जाते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उसकी कैपेबिलिटी आती है। इन सब बातों के अलावा बहुत जबरदस्त टैलेंट, एक नहीं 2 टैलेंट आते हैं। एक वो कि आपका बच्चा ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाता है, जो आपने शायद जी पे ई पे हम लोगों ने बहुत जगहों पे बच्चों को भेजा, आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे, तो वो ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाता है, बंद आंखों से किताब पढ़ना, कलर पहचानना, मोबाइल के मैसेज पढ़ना, पैरों से अखबार पढ़ना, हर वो काम जो आप खुली आंखों से करते हैं हमारे बच्चे बंद आंखों से करते हैं। ये बेसिक है। एक्सट्रीम ये कि आपको जो पसंद आए ना वो किताब अपने घर से ले आना, और वो किताब को बच्चे खोलते ही नहीं, स्मेल करके बताते हैं कौन से पेज पे क्या मैसेज, दे डोंट नीड टू ओपन दैट बुक। और इसका एक्सट्रीम पार्ट ये कि आपको जो पसंद आए ना वो किताब दे दो, 10 दिन के अंदर वो किताब पेज नंबर सहित उस बच्चे को याद हो जाती है। लाइक इफ यू आस्क देम व्हाट इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, लाइक 28 नंबर पेज पे क्या, तो दे वुड रिप्लाई कि ये एक्चुअली शुरू तो 21 पे हुआ था, 28 पे तो खत्म हुआ है। इस तरह से हम बच्चों को तैयार करते हैं, ऐसे 1000 से ज्यादा बच्चे तैयार करते हैं। उसी के लिए पहले यहाँ यूपी के एक चीफ मिनिस्टर रहे कल्याण सिंह साहब, अब तो स्वर्गवास हो गया, उन्होंने इसी चीज के लिए हमें रिकॉग्नाइज किया था, फिर नासा में भी इसी चीज के लिए रिकॉग्नाइज किया गया, और वर्ल्ड वाइड अभी बहुत जगहों पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इंडिया और इंडिया के बाहर, इसी चीज के लिए हमारे को इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम। एंड मैं काम करता हूँ, मैं किसी का ये डेमो प्रोग्राम करवाऊँ उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई पेरेंट, एनीवन ऑफ यू, कोई भी अगर आए तो हमारे को सपोर्ट हो जाएगा एक डेमो में हेल्प के लिए। कौन आएगा वॉलंटियर के लिए? कोई भी आ जाओ, कोई भी, एनीवन ऑफ यू, प्लीज कम। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? रेणुका। रेणुका जी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड व्हाट वुड वी डू, एक छोटा सा हम परीक्षा करने वाले हैं। एक्चुअली जी पे किया था हमने, जीटी पे, तो जीटी वालों को थोड़ा सा डाउट हो गया था, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मैम के सपोर्ट से करेंगे। प्लीज तेज नारायण जी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, एनीवन। सी व्हाट वुड वी डू, हम लोग क्या करेंगे,
ये एक्चुअली पहले हम लोग डायरेक्ट पट्टी बांधते थे और कुछ नहीं करते थे, लेकिन जी को थोड़ा सा डाउट हुआ, जीटीवी को, उन्होंने कहा ये कहीं से देखते हैं, तो व्हाट दे सेड कि ये ना कॉटन लगा दो आंखों पे। अगर आप कॉटन लगाओगे ना तो ये आंख खोलने की कोशिश करेंगे, रुई आंखों में घुसेगी और पानी निकलेगा और हमें पता चल जाएगा कि कहीं से देखने की कोशिश करें। सो दे डिड दैट। उसके बाद हमने ये शुरू कर दिया। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मैं थोड़ा सा आपके आंखों पे कॉटन लगा रहा हूँ, ठीक है। सो मैम प्लीज़ आप आ जाए, ये थोड़ा सा एक कष्ट मैं माफ़ कर दें। नाउ शी इज स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट वुड आई डू। मैं आपसे अभी मैम से ही परीक्षा लेते हुए थोड़ा सा फ्रंट पे देखेंगे आप। हाँ चलिए, ठीक है। सो मैंने आपके आगे कितने फिंगर्स कर रखे हैं? Not able to recognize. 3. मैंने हाथ ही नहीं कर रखा, मतलब कंफर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक ट्राई और करता हूँ। कई बार मेलाटोनिन का सीक्रेशन होता है, एज फार एज ग्लैंड्स आर कंसर्न। हमारा जो पीनियल ग्लैंड है उससे 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। कई बार हमारे तुक्के बैठ जाते हैं, वो मेलाटोनिन के सीक्रेशन से बैठते हैं, पर वो प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा इशू आता है। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ आपके हाथ में, प्लीज कीप दिस, ट्राई टू रिकॉग्नाइज दैट कलर। Color. I think it is red. ये भैया हाथ से रेड है, तो मतलब ये तो कंफर्म है कि नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ मैंने इसलिए किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। लास्ट में कर रहा हूँ मैं, एक और दे रहा हूँ आपको, लास्ट, इट मींस लास्ट। I have to recognize what? Color. It's yellow. चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैम ने ईमानदारी से सारी चीज़ बता दी। अब ये येलो कहाँ है मैं ढूंढूंगा इसमें। ये सब द थिंग इज टोटली टफ टू रिकॉग्नाइज ब्लाइंडफोल्ड। भाई आंखें बंद है तो हाउ इज इट पॉसिबल, कोई बंदा कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। सो अभी मैं एक बार ये कॉटन इनके आंखों की पट्टी हटा रहा हूँ और मैं आपके साथ में एक और डेमो शेयर करने जा रहा हूँ। मैम ये आपको दीजिए प्लीज ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम इस टाइम प्लीज़ आप ही खड़े रह जाइए, ताकि क्या मैं एक काम करता हूँ, एक बच्चे को हम लोग लेके आए हैं मुंबई से, प्लीज़ आ जाओ। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि आपको पता है गर्मी इज़ अ डिफरेंट, पेरेंट्स भेजते ही नहीं। ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को क्यों भेजेगा। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज पेरेंट्स, क्योंकि ऐसे कोई भेजता नहीं है। बट दे सेड कि ठीक है, किसी को हेल्प हो रहा है तो कर दो, जब तक ये छोटे वोटे हैं हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। मैम यही चीज़ आपको इनके बांधनी है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैम बांधेंगे, मैम ने खुद ने फील किया है, सो वे इजी। ये इसको हम इसलिए भी लेके आए कि ऑलरेडी बहुत सारे आप नेट पे सर्च करेंगे, मेरा नाम लिख लीजिएगा विपुल शर्मा टीम 360 डिग्री, या विनीत सर का लिख लीजिएगा विनीत शर्मा टीम 360 डिग्री, आपको 1500 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे और ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको देखने को। बट नाउ द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ यू मे गिव एनी डैम थिंग दैट यू वुड लाइक टू गिव। अभी आपको जो देना है आप दे सकते हैं, ही वुड रिकॉग्नाइज। जो चाहे आप अपना मोबाइल नंबर दे दें, आधार कार्ड दे दें, हम तो देंगे, लेकिन हम देंगे तो ये हो जाएगा कि ये कहीं से देखता है एंड ऑल। तो अगर आप बुक भी अपनी तरफ से देंगे तो बेटर रहेगा। अगर बुक है तो बुक रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा, एक बुक तो हम लोग लेके आए हैं। अदरवाइज अपनी तरफ से दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको पसंद आए ना। ये वो हर चीज़ खुली आपको रिकॉग्नाइज करते हैं जो आप वो ये बंद आंखों से करते हैं। और कोई बाबा जी का चमत्कार नहीं है, केवल एज फार एज साइंस इज कंसर्न हमारे 5 तरह के सेंस है। प्लीज यू मे गिव मी। ये एक वॉच है जिसका अंदर डायल वाइट कलर का है, बॉर्डर सिल्वर कलर के और पूरा इसका बैंड पिंक कलर का है। और इस पे टाइम हो रहा है अभी 9:15 और फास्ट ट्रैक की वॉच। Anything that yes please you may even okay हरिवंश राय बच्चन जी की है मधुशाला। इसमें यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर से एक डिज़ाइन बनी है, जिसपे ब्लैक कलर से एक स्केच बनी है। एक लेडी की स्केच है जिन्होंने मटका पकड़ा हुआ है ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे एक वाइट कलर से डिज़ाइन बनी हुई है। ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज ब्लैक कलर से अलग अलग डिज़ाइन बनी है, और वाइट कलर से यहाँ पे बनी हुई है। और पीछे हरिवंश राय जी की
इमेज बनी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है हरिवंश राय बच्चन की अमर काव्य रचना मधुशाला 1935 से लगातार प्रकाशित होती आ रही है। इससे थोड़ा टफ करते हैं, थोड़ा सिंपल है। टफ मोर टफ। वो बुक लेके आ रहे थे, ठीक है, प्लीज 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 सर। हु इज कमिंग फॉरवर्ड? एक सर आ रहे हैं सामने से जिन्होंने ग्लासेस पहनी हुए हैं और हाथ में उनके एक कार्ड है और दूसरे हाथ में एक रिंग है गोल्डन कलर की जिसपे सिल्वर कलर के छोटे डायमंड्स लगे हुए हैं और सेम इस पे एक टैटू बना हुआ है, हीना लिखा हुआ है जिसपे वाइट कलर का कुर्ता है वाइट कलर का और ब्लू जीन्स, ग्रे शूज जिसकी टिप ग्रीन कलर की और बैक सोल ब्लू कलर का। ये ड्राइविंग लाइसेंस है जिसपे नंबर लिखा हुआ है CS01200200184881 और नाम लिखा हुआ है अनिल कुमार। शूज की भी डिटेल दे दी। ये मोबाइल में इमेज है जिसपे एक सर बाइक पे बैठे हुए हैं। क्लासिक बाइक है, ब्लैक कलर की जैकेट पे हुडी पहनी हुई है। हुडी ग्रीन कलर की है जिसपे कैप के अंदर ग्रे कलर है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की जैकेट है। बाइक के आगे इंडिया का तिरंगा लगा हुआ है, ब्लू कलर की जीन्स है और बूट्स पहने हुए हैं रेड और ब्राउन कलर के। और पीछे की साइड पहाड़ों का दृश्य है जिसमें रेड कलर की एक कार है और कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो इसको थोड़ा टफ करते हैं। मैं तो अपनी तरफ से किताब दूंगा क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप थोड़ा सा इसको टफ करें तो प्लीज प्लीज प्लीज। एक और ग्रीन कलर का कार्ड ये है, इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है DL5SBX8196 और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वाइट कलर के बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से लिखा, ऊपर येलो कलर का बैकग्राउंड है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ब्लैक कलर से लिखा है और ये सेम वाइट बैकग्राउंड में यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर नॉट बी यूज्ड एज रेसिडेंस प्रूफ और फिर यहाँ पे लोगो बना हुआ है और फ्रॉम 23A और उसके नीचे लिखा हुआ है 50470600। ये ICICI बैंक का डेबिट कार्ड है, वीज़ा प्लेटिनम, अखिलेश कुमार नाम लिखा हुआ है। ओके, अभी इसको चलिए मैम एक ट्यूब लेके आएंगे। लव एंड प्लम्स द बॉडी शॉप, हैंड क्रीम, क्रीम मेंस और पिंक कलर के बैकग्राउंड में लिखा है ग्रीन कलर से फॉर नॉर्मल स्किन 48H हाइड्रेशन और ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में व्हाइट कलर से वेगन। मैम ने ग्रीन कलर का सलवार सूट पहना हुआ है जिसपे गोल्डन कलर के डिजाइन है और एक हाथ में तो ट्यूब है, दूसरे हाथ में ब्लू कलर का मास्क है जिसपे व्हाइट और रेड कलर से डिजाइन बनी हुई है और एक सिल्वर कलर का कड़ा है, गोल्डन वॉच है और ब्लैक धागा। आपके बच्चे कर सकते हैं सारे के सारे विद इन 10 days। आई वुड कवर बायोलॉजिकली, आई वुड कवर। अच्छा, बच्चा है जिसके हाथ में 5 रुपए का नोट 5 रुपए का नोट है जिसका सीरियल नंबर है J5D5307JJ सीरियल नंबर भी और दूसरे हाथ में कैप है बॉटल की ग्रीन कलर की। नाम भी बता सकते हैं। जिसपे 3 कलर के शेड हैं, लाइट ब्राउन, नॉर्मल ब्राउन और डार्क ब्राउन। Precise, yeah. Eyes are just the same, you don't need eyes. रिजवान परवेज नाम है इस पे, ब्लू कलर के पेन से लिखा हुआ है। यहाँ पे एक
ये एक फ्लाइट टिकट का फोटोकॉपी है जिसपे 6 AM to 8:05 AM 2 hours 5 minute नॉन स्टॉप जर्नी है और गो फर्स्ट G8329 फ्लाइट नंबर है। INR 9,163 टिकट की प्राइस। वो स्मार्ट पेड मील रिफंडेबल दिल्ली। सी अब इसको और टफ करते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है। Oh my god. Within 10 days, your baby would be, what would be? Within 10 days? Yeah, right, right. मैं इसको टफ करना चाहता हूँ। ये एक कॉपी है। ऊपर BSL वर्ल्ड स्कूल लिखा हुआ है, लोगो बना हुआ है, नोएडा है। यहाँ पे नोटबुक लिखा हुआ है रेड कलर के मार्कर से, ब्राउन कलर के मार्कर से, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है आरोही ठाकुर, क्लास 4 A मैथ्स। अंदर इंडेक्स में यहाँ पे नंबर 1 6 डेट लिखी हुई है 6/4/22, चैप्टर 1 नंबर्स, पेज नंबर 3। अब एक काम करते हैं, मैं लास्ट एक स्लिप क्योंकि मेरे को रीजन भी बताना है कैसा है, क्योंकि ये नहीं तो लोगों को लगेगा ये कोई सर ये आधार कार्ड है मोहम्मद यासिर अनवर, डेट ऑफ बर्थ है 1/12/1988। हाँ ये भी सही है, वो एक और आ गया, दोनों को साथ ही लेना चाहिए। ये मास्क है जिसकी स्ट्रिप तो रेड कलर की है और पूरे मास्क पे ब्लू व्हाइट और रेड कलर है। हाँ ब्लू व्हाइट कलर का पूरा मास्क है जिसपे अंदर की साइड रेड कलर की स्ट्रिप्स है और बाहर की साइड ब्लू कलर की। दिखाना बेटा, जस्ट शो। हाँ इधर ब्लैक कलर के स्क्वायर्स बने हुए छोटे छोटे और इधर रेड कलर के स्क्वायर्स बने हुए हैं। ये एक स्लिप है जिसपे 3 लाइन लिखी हुई है जिसपे नंबर 1 211 1A, सेकंड है 289 1A, फिर थर्ड है 288 1A। यहाँ तो एक सर खड़े हैं जिन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट और डार्क ग्रे पैंट्स पहनी हुई है, ब्लू लोफर्स हैं, और उसके यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है जिसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है जिसकी स्लीव्स की बॉर्डर और कॉलर की बॉर्डर में वाइट कलर है, बटन है वाइट कलर का, मास्क पहना है ब्राउन और ब्लैक कलर में, और ब्लू जीन्स है, ब्लू शूज़ है वाइट सोल के साथ। यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है जिसने सेम ऐसा ही मास्क पहना हुआ है, ब्लू और वाइट रेड कलर की स्ट्रिप वाला, और गले में उसके ब्लैक कलर का एक धागा है। टी शर्ट पहनी हुई वाइट कलर की जिसपे हॉर्सेस बने हुए हैं जिसपे लोग बैठे हैं, कुछ उल्टे बने हैं कुछ सीधे बने हैं, और UNO का साइन बना है, 1984 लिखा हुआ है। पोलो टेनिस ब्लू शॉर्ट्स और शूज पहने हैं वाइट कलर के, नाम भी बता दो। ग्रीन और ब्लू कलर है। नाम बता दीजिए। एक हाथ में तो हैंकी है और दूसरे हाथ उन्होंने जेब में डाली है, उसमें भी एक कुछ था पेपर टाइप कुछ। मैं एक एक्चुअली मैंने GD समीर में, हाँ यस प्लीज। I was examined here. And I'm not able to believe also I'm standing here shocked because I was not able to see anything. It was so blank and so black. I was not able to see the color. I was not able to see the fingers also. So it is unbelievable for me also. तो सर एक चीज़ और बताऊँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमने जी पे किया था तो एक्चुअली हम लोगों ने GD सोमानी एक मुंबई में स्कूल है वहाँ किया था, तो दे वर लिटिल बिट लाइक इन दैट डिलेमा कि यार कैसे हो सकता है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी, यार हो सकता है क्या, ये पॉसिबल नहीं है, ये हटाओ सर मेरी वाली बांधो। दे डिड दिस, 22 पट्टियां बांधी है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ताकि संतुष्टि हो जाए कि कहीं से देखता नहीं है। बट ये देखते ही नहीं आंखों से, ये सेंस करते हैं, बिकॉज एज फार एज आवर सेंसेस आर कंसर्न, टच टेस्ट स्मेल, ब्लाइंड लोग भी तो चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि उनके अदर सेंस उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे क्या है, आंखें तो हैं तो वो डोमिनेटिंग है, बाकी की जो है ना वो एक्टिवेटेड है। हम क्या करते हैं, सारों को डोमिनेटिंग कंडीशन में लाते हैं। इसलिए क्या है कि आइज जाती हैं तो स्मेल करने लग जाते हैं, आंख और नाक बंद करेंगे तो कानों से सुनेंगे, तीनों बंद करोगे तो डिस्टेंस से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो बिल्कुल मैम जैसा बता रहे थे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर वी आर प्लानिंग कि ये सभी बच्चों को कराया जाए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज सर, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स वी हैव ट्रेन्ड।
एक, हाँ इन इंडिया। और आप सिर्फ नेट पे मेरा विनीत जी का हमारा नाम सर्च कीजिए, टीम 360 लिख लीजिएगा, है ना। और इसका एक और मैं, हाँ क्योंकि रह जाएगा जो कह रहे हैं, मैं एक और डेमो दिखाता हूँ क्योंकि ये बेसिक है, इसका एक्सट्रीम में आपको दिखाना है। ये बुक हम लोग लेके आए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कोई मैं कहना कोई भी एक पेज नंबर जिसपे कोई इमेज मिली हो, ये घूम जाएंगे, ये किताब को खोलेंगे ही नहीं, क्योंकि कई बार ये होता है ना कहीं से देख रहा है, देखने का इशू ही खत्म। क्यों? क्योंकि किताब के अंदर का बताएंगे, किताब ही नहीं खोलेंगे, और किताबें आपकी होंगी, ये तो हम क्लियर है। पेज नंबर 51। पेज नंबर 51। अभी ये सिर्फ स्मेल करेंगे और ट्राई टू रिकॉग्नाइज द कलर। अगर आपकी तरफ से किसी के पास बुक है तो आप अपनी दे दीजिएगा, क्योंकि ये तो मेरे पास थी तो मैंने दे दी। और इम्पोर्टेंट ये है कि 10 दिनों में आपके बच्चे भी इस तरह के हो जाएंगे, इस तरह से चीजें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। डन मैम, देखिएगा प्लीज। पेज नंबर 51, इस पे एक इमेज बनी हुई है, बड़ी इमेज है, आधे पेज पे बनी है, जिसमें एक पहाड़ के एरिया का सीन है जहाँ पे स्नोफॉल हो रखी है। लोग हैं कुछ जो भाग रहे हैं, किसी ने व्हाइट कलर की कैप पहनी है, कोई रेड और ग्रीन कलर की ड्रेस में है, और पीछे की साइड एक ब्राउन कलर का एक घर बना हुआ है जिसके ऊपर स्टोन्स गिर रहे हैं, पीछे से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, तो वो सब डर के भाग रहे हैं वहां से। Can you show the picture? अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, प्लीज थैंक यू मैम। सी अभी हम लोगों का एक मैं चीज क्लियर कर दूं, हमारा कतई ये उद्देश्य नहीं है कि हमको यहाँ पे ऐसा किया और चमत्कार कुछ कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेलाटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन की वजह से होता है। एज फार एज आवर ग्लैंड इज कंसर्न, लाइक पिनियल ग्लैंड से 2 तरह के हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। आप जो हमें देख रहे हो या हम आपको देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के सीक्रेशन हम एक दूसरे को देख पाते हैं। ये जो रिजल्ट आया जस्ट बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन, आप नेट पे भी सर्च कर दीजिएगा। मेलाटोनिन का सीक्रेशन आप में और हमारे अंदर भी हो रहा है, लेकिन अपने में इतना ही हो रहा है कि आपको जो रात को नींद आती है वो मेलाटोनिन के सीक्रेशन की वजह से आती है, और हम लोग मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस के थ्रू इसके सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं। अभी 70 माइक्रोमिल के हिसाब से हम सब में हो रहा है। बच्चों में जो 5 से 16 साल के अंदर के हैं, इस एज ग्रुप का कोई भी बच्चा अगर ये प्रोग्राम करता है तो उनका सीक्रेशन जल्दी बढ़ता है। बच्चों का 70 से बढ़ा के 120 माइक्रोमिल के हिसाब से हमारे को लेके आना होता है। जैसे 120 आता है, आते ही बच्चों के अंदर ये रिजल्ट आ जाते हैं। दूसरा, हम सारे सेंसेस को डोमिनेटिंग कंडीशन में लाते हैं। वो उसके लिए जापान की पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हमें करानी होती है, मेडिटेटिव म्यूजिक हमारे को सुनाना होता है इसके पर्टिकुलर, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये चीज निकल कर आती है। मन में ये बात आ जाती है, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं एक एक्सरसाइज, सिर्फ एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या रीजन है कि बच्चे ये चीज कर पा रहे हैं और हम लोग वही एज क्रॉस कर गए तो एटलीस्ट बच्चे तो उसका बेनिफिट उठा लें। सो व्हाट यू नीड इज जस्ट पुट लाइक दिस। आपका जो हाथ है राइट हैंड, इसको ऐसे कर लीजिए, राइट हैंड को ऐसे कर लीजिए, ठीक है? इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज लाइक दिस, ऐसे घुमा के देखिए। घूम रहा है ना, आसानी से घूम रहा है, कोई उल्टा तो नहीं, ठीक है। ओके, सो ऑल आर डूइंग दिस, बिल्कुल ठीक है। अभी हाथ रोक लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड लीजिए अपना, इसको एंटी क्लॉकवाइज बाहर से और अंदर की तरफ घुमाना है, बाहर से अंदर की तरफ। मैं उल्टा घूम रहा है, येलो, मैं उल्टा घुमाना है आपको, अंदर की साइड से बाहर करिए, यहाँ से सब दिख जाता है ना। चलिए, ओके। सो अभी क्या करना है, राइट वाले को आपने क्लॉकवाइज घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। अब दोनों काम एक साथ, एक बाहर एक अंदर, एक को बाहर एक को अंदर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। स्लो भी कर सकते ये टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है। अरे साथ में करना है भाई, बिकॉज बाय बर्थ लाइक वी है ना, इंडियन पीपल आर लॉजिकल बहुत है, हम लोग लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड लोग हैं। नाचना नहीं है, चलिए ठीक है। सो मोर और लेस ओके, एक एक्सरसाइज अगर आप इसको कंटिन्यू करें तो हाथ ऐसे करके देखो, अगर ये होता है तो हाथ ऐसे करके देखिए। इसमें जो सबसे बड़ी अंगुली है, क्योंकि बच्चे ना इसमें चीटिंग कर जाते हैं क्योंकि मानते नहीं है, आप मैच्योर हैं, आप समझेंगे इसको। जो सबसे बड़ी अंगुली है ना, उसको पूरा अंदर तक ऐसे चिपका लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। नीचे सरदार जी एक बार नीचे करके दिखा देना, किसी को दिक्कत नहीं आए। हाँ, मैं एकदम सही कर रही हूँ।
ये जो सबसे रिंग फिंगर के पास जो सबसे बड़ी उंगली है उसको पूरा अंदर तक करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अंगूठे को खोल के बंद कर लीजिए, इजीली हो गया। उसके आगे वाली फिंगर को खोल के बंद कर लीजिए, ये भी इजीली हो गया होगा। लास्ट वाले फिंगर को खोल के बंद कर लीजिए, ये भी इजीली हो गया होगा। अब बगैर कोई होशियारी और दिमाग लगाए बीच वाली उंगली को तो छोड़ना है, तो इसका अगर रिंग फिंगर खोल के देखो, बीच वाली को मत गैप आने देना, नहीं होगा। इसको चिपका के रखना है रिंग। हो जाता मैं कराता ही क्यों, सीधी सी बात है। सी नाउ हो गया। ओके नाउ ये हाथ ऐसे रखना है। कईयों को ऐसा लगता है ये मैंने कर दिया, नहीं होता वो, ये हाथ यूं करके कर ले, ऐसे नहीं करना, हाथ पूरा यूं रखना है। कोई लाखों में एक मुश्किल से मिलता है, और उसका भी रीजन बताऊंगा। अभी इसको बायोलॉजिकल रीजन बता देते हैं। बीइंग अ डॉक्टर आई टेल यू, सी ये जो राइट पार्ट है, इस पार्ट को लेफ्ट वाला ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट लेफ्ट वाले को राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। सर बायोलॉजी में हम सबने पढ़ा है, क्रॉस सेक्शन होते हैं। जब आप हाथ बाहर घुमा रहे थे तो इधर से आदेश गया बाहर घुमाओ, यू डिड लाइक दैट, ऐसे आपने हाथ सडनली आई सेड हाथ अंदर की तरफ घुमाओ, आपने अंदर घुमाना शुरू किया तो इधर से आदेश गया अंदर घुमाना शुरू कर दिया। अचानक से मैंने कहा दोनों काम एक साथ करो तो ब्रेन इज कंफ्यूज, अरे भाई करना क्या, या तो बाहर घुमा ले या अंदर घुमा ले, क्योंकि ब्रेन एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। ये गलत अवधारणा इंडिया में विकसित हो गई, ऐसा नहीं है। ब्रेन एक टाइम में हजारों काम कर सकता है, लेकिन कभी इस तरह की कंडीशनिंग नहीं कही। ये एक एक्सरसाइज करवाइए, 2 एक्सरसाइज कराइए, इसकी हमारे पास 40 तरह की एक्सरसाइजेज है, जिसको मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर एक स्पेसिफिक स्कूल है जो जहां के बच्चे 1.5 घंटे में 3 घंटे का पेपर करते हैं, क्योंकि वो दोनों हाथों से लिखते हैं। आपने नोटिस किया होगा एक मूवी भी आई थी 3 इडियट, उसमें भी वो दोनों हाथों से करते थे। इसका एक बेनिफिट ये है कि आपके दोनों पार्ट जो ब्रेन के प्रॉपर यूज में आते हैं। बट बचपन से ही सिखाया जाता है राइट से लिखो, राइट से लिखता है कोई बच्चा, लेफ्ट से लिखो, लेफ्ट से लिखता है, दूसरे हाथ का यूज ही नहीं आता है। ऐसी 40 तरह की एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं, प्लस एक स्पेसिफिक 44 हर्ट्ज का म्यूजिक हम सुनाते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लैंड एक्टिवेट होता है, हार्मोन का सीक्रेशन होता है, ब्रेन बैलेंस होता है, ये रिजल्ट आता है। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ बैठे एक एक शख्स को मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हम कोई भाग्य नहीं बताते हैं, ना ही हम ज्योतिष बता सकते हैं। मान लीजिए खुदा न खास्ता, भगवान ना करे, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर ये कहे कि एक्सरे कराओ, यूजुअली यही होता है एक्सीडेंट पे। अभी आपने एक्सरे कराया, एक्सरे में आया फ्रैक्चर, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, प्लास्टर करना पड़ेगा। अब प्लास्टर करना या एक्सरे करना डजन भी हमने कोई भाग्य देख दिया, ज्योतिष देख दिया। उसी तरीके से बायोलॉजिकली प्रूवन है, आपके ब्रेन की क्या स्थिति है वो निकल कर आती है। एमबीबीएस सेकंड ईयर में इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज है कि हम चाहते हैं हर बच्चे को ये 5th स्टैंडर्ड के अंदर ही पता चल जाए। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे समर वेकेशन के अंदर इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं, एंड बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है मैनेजमेंट के लिए कि उन्होंने हमारे को इतनी सपोर्ट किया, इवन पीपल आर सिटिंग हियर, आप लोगों के लिए। अभी हम इसमें एक आपके साथ पेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमने मैनेजमेंट को दे दिया है, दे वुड डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट, वी गिव इट टू यू। आप लोग फॉर्म देख लीजिए, उस पर पूरे कोर्स का डिटेल है, ठीक है। उसके ऊपर नीचे ना एक सीजर का निशान है, कैंची का निशान है, ताकि आप उसको फिल करके हमें दे दीजिए, सो दैट हम आपको सारा डिटेल इसमें मिल जाएगा, उससे रिलेटेड प्लीज में। ओके सी 5 साल से बड़ा कोई भी होना चाहिए और 17 साल से छोटा, वैसे कर तो उससे बड़े भी सकते हैं, लाइक 25 साल का एज मेनी इज डूइंग दैट, लेकिन फिर एक चीज का गैप रहेगा, वो है वो ब्लाइंड फोल्ड नहीं कर सकते। बाकी पूरी बुक पेज नंबर से याद हो जाएगी, क्योंकि कई पेरेंट्स आते हैं कहते हैं यार मेरा एक बच्चा 9th में, एक 10th में, और एक बच्ची मेरी ग्रेजुएशन कर रही है। अब वो जो ग्रेजुएशन कर रही है वो एज क्रॉस कर गए, तो उन सभी के लिए, इवन इंक्लूडिंग पीपल आर सिटिंग हियर दोस आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कई लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या कोई एक्स कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी बुक ही उन्हें याद करनी होती है, उन्हें थोड़ी, नहीं तो कई बार कहते थे बिल्कुल जी हमें क्या करना है, गांधारी दत्तराज बन के यार सर नौकरी लग जाए, हमारा तो ये ऑब्जेक्ट है। अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह की चीजें लेके आते हैं, पूरी बुक पेज नंबर से याद हो सकती है, ये टैलेंट आप लोगों में भी विकसित हो सकता है। लेकिन अगर आप ब्लाइंड फोल्ड वाला या वो सारा रिजल्ट चाहते हैं तो 5 से 16 साल के बच्चे, जो आइडियल क्लाइंटल है वो इसी एज ग्रुप का बच्चा है, वो कर सकते हैं, और एक बार आ गया तो ये रिजल्ट टिल लाइफ रहता है, वापस नहीं जाता है। लेकिन लास्ट के अंदर एक बहुत बड़ा नियम है जो मैं बता देता हूँ, बगैर उसके प्लीज सोच समझ के एडमिशन कराइएगा। जितने बच्चे बैठे हैं अपने आप में एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, मैं बता देता हूँ कि भैया ये 10 दिन तक जो मोबाइल नाम की चिड़िया है इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। 10 दिन तक आपको मोबाइल पे इन्हें गेम नहीं खेलने देता, तुम बाकी कुछ भी देखो, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस होती है, हम वी आर नॉट सेइंग कि आप वो बंद कर दो, सिर्फ गेम खेलने के लिए GTA वाइस सिटी और सैंड एंजर्स, पता नहीं कौन कौन से, वो कौन सा एक होता है वो गोलियों वाला, पबजी, इस तरह के, प्लीज ये अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा है तो प्लीज 10 दिन के लिए या तो एडमिशन ही मत कराना, और कराओ तो प्लीज 10 दिन के लिए उसे ये गेम छुड़वाना पड़ेगा। क्यों छुड़वाना पड़ेगा? क्योंकि हम अल्टरनेट डेज में कराएंगे।
कोशिश करेंगे टाइमली वर्क कंप्लीट हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन अगर आपका बच्चा मोबाइल पे गेम कर रहा है तो मोबाइल से ब्लू कलर की रेज निकलती है जो डायरेक्ट हमारे ग्लैंड को हिट करती है। हम तो यहाँ सीक्रेशन बढ़ाने पे मेहनत करें और वो बच्चा वो देख के सीक्रेशन गिरा देगा। अगर आपको इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो अपने घर में बच्चों को देखना, आप पढ़ने बैठाओगे 2 मिनट पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लग जाएगा। इवन हमारे साथ भी होता है, या पढ़ते पढ़ते मोबाइल में लग जाएगा। आप उसको करते हैं इसमें दिमाग लगाना कहाँ इधर उधर देख रहा है। इफ इट इज हैपनिंग विद यू दैट मींस कि वो सीक्रेशन कम हो रहा है, उसके लिए आपको उसको मोबाइल से थोड़ा दूर करना चाहिए। एटलीस्ट गेम मत खेलने दें, बाकी आप कुछ भी करें, सो दैट वुड हेल्प यू एंड दिस इज दैट थिंग दैट वी आर डूइंग। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछिए। अदरवाइज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड 2012 का हमारा एस्टेब्लिशमेंट है। आप कंपनी का डिटेल देख सकते हैं। प्लस कंपनी का निकनेम इतना बड़ा कौन बोलेगा, इसलिए टीम 360 का रखा है निकनेम। बाकी www.team360.org एंड YouTube पे DMIT टेस्ट पैक, उस पे DMIT के बारे में पूरा जिक्र है। इवन हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, इफ यू वांट टू सी, इवन नेट पे भी अवेलेबल है। 1864 से 2010 तक का गवर्नमेंट का हमारे पास रिकॉर्ड है, हर देश का किसने कब कितनी DMIT यूज की, इंक्लूडिंग इंडिया का भी है। और हम वी आर प्लानिंग, अभी तो दिल्ली गवर्नमेंट से जो डिप्टी CM साहब हैं उन्होंने इसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया है कि ये हर बच्चे को जो है ना गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को तो टेस्ट मिलना चाहिए। उसका एक वीडियो भी जारी किया था उन्होंने। मिड ब्रेन एक्टिवेशन टीम 360 जयपुर, बाकी ये नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेजेस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर। हाँ, एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ। ये स्लिप प्लीज है ना, ये दे रहे हैं ना, नीचे सीजर का निशान है, आप फिल करके प्लीज दे दीजिएगा, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट, हम लोग आपसे बात कर पाएंगे और आगे का सारा शेड्यूल, क्या पहन के आना है, कैसे करना है, क्या लंच लाना है, सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर पाएंगे। सो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को फिल करके प्लीज जो कंसर्न व्यक्ति हमको वापस दे दीजिएगा। और आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ, इतने गौर के साथ हमारे को सुना, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू पीपल। आप लोग बहुत, हाँ जी मैम बोले। वी वुड प्लान फॉर दिस मैम, ताकि हम इसे बाहर कर सके। इवन वी वुड प्लान कि ये ऑनलाइन किया जा सके, बिकॉज नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग, हम लोग तो 2.5 साल से इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। बिकॉज पेरेंट्स आर सिटिंग इन, मैम से बात हुआ था तो मैंने ठीक है इसको समर कैंप में किया जा सकता है, अदरवाइज इसको ऑनलाइन भी किया जा सकता है। लेकिन मेरे को तो सिर्फ 6 आते हैं, या घबराहट में पहला आंसर गलत हो गया, उसको काट देंगे, उसको वापस रब करेंगे और उसमें वो सारा बिगड़ जाएगा। और जहाँ 6-7 क्वेश्चन आने चाहिए थे वहाँ पे वो 4 ही क्वेश्चन करके आएंगे। दैट इज कॉल्ड एडवर्सरी क्वेश्चन। विपरीत परिस्थिति को हैंडल करने का स्टफ है कि ये सब इसमें निकल कर आता है। आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो ये भी पता चलता है। न केवल ये, आप में लीडरशिप स्किल्स कितनी है, आपका ऑब्जर्वेशन कंसर्न, जैसा मैम ने बताया 86 बिलियन न्यूरॉन्स वी ऑल हैव, हम सबके पास 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स, 86 बिलियन न्यूरॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लेमन लैंग्वेज में क्या होता है, अगर बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा है या किसी चीज के अंदर वीक है तो हम लोगों का जवाब आता है पढ़ता नहीं है। अरे करता क्या नहीं है, वो उस हिस्से में उसके न्यूरॉन्स कम हैं। जिन हिस्सों में न्यूरॉन्स ज्यादा हैं वहां वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और जिन हिस्सों में न्यूरॉन्स कम है वहां वो परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन ये चीज हमारी जानकारी में नहीं होती है तो थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। हम कहते हैं उसमें कमजोर है, कमजोर जैसी बहुत जबरदस्त एक नहीं 2 टैलेंट आते हैं। एक वो कि आपका बच्चा ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाता है, जो आपने शायद ई पे हम लोगों ने बहुत जगहों पे बच्चों को भेजा, आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे, तो वो ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाता है। बंद आंखों से किताब पढ़ना, कलर पहचानना, मोबाइल के मैसेज पढ़ना, पैरों से अखबार पढ़ना, हर वो काम जो आप खुली आंखों से करते हैं हमारे बच्चे बंद आंखों से करते हैं। ये बेसिक है। एक्स्ट्रा एक्सट्रीम ये कि आपको जो पसंद आए ना वो किताब अपने घर से ले आना, और वो किताब को बच्चे खोलते ही नहीं, स्मेल करके बताते हैं कौन से पेज पे क्या मैसेज, दे डोंट नीड टू ओपन दैट बुक। और इसका एक्सट्रीम पार्ट ये है कि आपको जो पसंद आए ना वो किताब दे दो, 10 दिन के अंदर वो किताब पेज नंबर सहित उस बच्चे को याद हो जाती है। लाइक इफ यू आस्क देम व्हाट इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, लाइक 28 नंबर पेज पे क्या, तो दे वुड रिप्लाई कि ये एक्चुअली शुरू तो 21 पे होता, 28 पे तो खत्म हुआ है। इस तरह से हम बच्चों को तैयार करते हैं। ऐसे 1000 से ज्यादा बच्चे तैयार करते हैं। उसी के लिए पहले यहाँ यूपी के एक चीफ मिनिस्टर रहे कल्याण सिंह साहब, अब तो स्वर्गवास हो गया, उन्होंने इसी चीज के लिए हमें रिकॉग्नाइज किया था। फिर नासा में भी इसी चीज के लिए रिकॉग्नाइज किया गया, और वर्ल्ड वाइड अभी बहुत जगहों पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इंडिया और इंडिया के बाहर। इसी चीज के लिए हमारे को मैं बता देता हूँ कि भैया ये 10 दिन तक जो मोबाइल नाम की चिड़िया है ना, इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। 10 दिन तक आपको मोबाइल पे इन्हें गेम नहीं खेलने देना। तुम बाकी कुछ भी देखो, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस होती है, हम वी आर नॉट सेइंग कि आप वो बंद कर दो, सिर्फ गेम खेलने के लिए। GTA वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, पता नहीं कौन कौन से, वो कौन सा एक होता है वो बोले वाला, PUBG, इस तरह के। प्लीज ये अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा है तो प्लीज 10 दिन के लिए या तो एडमिशन ही मत करना, और कराओ तो प्लीज 10 दिन के लिए उसे ये गेम छुड़वाना पड़ेगा। क्यों छुड़वाना पड़ेगा? क्योंकि
हम अल्टरनेट डेज में कराएंगे, कोशिश करेंगे टाइमली वर्क कंप्लीट हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन अगर आपका बच्चा मोबाइल पे गेम खेले तो मोबाइल से ब्लू कलर की रेज निकलती है जो डायरेक्ट हमारे ग्लैंड को हिट करती है। हम तो यहाँ सीक्रेशन बढ़ाने पे मेहनत करें, वो बच्चा वो देख के सीक्रेशन गिरा देगा। अगर आपको इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो अपने घर में बच्चों को देखना, आप पढ़ने बैठाओगे 2 मिनट पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लग जाएगा, इवन हमारे साथ भी होता है, या पढ़ते पढ़ते मोबाइल में लग जाएगा और आप उसको कहते हैं इसमें दिमाग लगाना था, इधर तो देख रहा है। इफ इट इज हैपनिंग विद यू दैट मींस कि वो सीक्रेशन कम हो रहा है, उसके लिए आपको उसको मोबाइल से थोड़ा दूर करना चाहिए, एटलीस्ट गेम मत खेलने दो ताकि आप कुछ भी करें, सो दैट वुड हेल्प यू